A very good morning class and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 40, we have covered the topic element of directing, supervision was completed, motivation was completed, and in previous lecture we covered leadership as well, that what is leadership and what are the features of leadership. Now my dear students, after leadership and its features, in this lecture, that is lecture number 41, we are going to start your another topic, that is different styles of leadership के styles क्या क्या होते हैं बेटा. अगर हम स्टाइल्स की बात करें, सो देर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एंड फ्री रेन लीडरशिप या लेजिस्फेयर लीडरशिप. लीडर इसमें से किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकता है लीडरशिप करने के लिए, बट he used to go normally for a single way, right? Means he can go ahead with autocratic, he can go ahead with participative or democratic or free reign leadership, laissez-faire. But usually what he used to do, he used to go ahead with any single method only for leadership. Now let's have a look. Number 1, what is autocratic or authoritative leadership? Means द लीडरशिप जिसमें हम अथॉरिटी देते हैं, राइट? तो द लीडरशिप विच इज़ ऑटोक्रेटिक इज़ दैट इन विच द लीडर ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड. इसमें लीडर ऑर्डर देता है और इंसिस्ट करता है कि इसको ओबे किया जाए, राइट? ही डिटरमाइंस ऑल दी पॉलिसीज़ फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग दैम. वो ग्रुप्स के लिए सारी पॉलिसी बनाता है बिना ग्रुप से कंसर्न करे हुए. And he simply give information about future, and after that simply tells the group what steps are to be taken immediately or after some times. Means इसमें peoples का initiative कुछ भी नहीं होता है, only whatever the initiative is taken, that initiative is taken by the leader only, right? He does not give any freedom to the subordinates so that the decision should be influenced. उसके डिसीजन को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. इसको हम अलग वर्ड्स में ये कह सकते हैं दैट इट इज द बॉस पीपल अराउंड. अनदर नेम वी कैन गिव फॉर सच काइंड ऑफ लीडरशिप इज बॉसिंग पीपल अराउंड. देखिए आपको चार्ट बनाया है बेटा, ABCD. इसमें ए आपका लीडर है, ही इज़ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. ये कौन सी लीडरशिप है? इट इज़ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. जो बेस्ट बंदा होता है उसी को हम एज अ लीडर अपॉइंट करते हैं, और लीडर की बातों को काटता इसलिए नहीं बिकॉज ही इज़ द नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप. सेकेंड इज़ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर. वॉट इज़ दिस? इन दिस ऑल द वर्क ऑफ द ग्रुप is done with the policies and acceptance of the group members. इसमें we used to discuss with the people, right? We never ask people to do things without working out for the long term plans. Means हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते हमने अपनी तरफ से कोई implement कर दिया. जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है for the people, of the people, by the people. In the very same way डेमोक्रेटिक और participative leader is there for the subordinates, of the subordinates and from the subordinates. इसका डायग्राम देख लीजिए. The A is the leader. This is group centered leadership. A is having the mutual understanding with C, with B, with D and with E. Means with every member A is having the leadership. And इससे क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को भी बोलने का मौका मिलता है, so automatically the attitude of the employees improves towards jobs and organization. Employees का attitude automatically improve हो जाता है towards jobs as well as towards organization. Now, when should participative or democratic leadership be applied? कब ये leadership applied होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए? बेटा, this democratic और participative leadership is very good when the group members are skilled and eager to share their knowledge. जब ग्रुप मेंबर्स स्किल्ड होते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, तब ये मेथड बहुत बेस्ट रहता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट when plenty of time is there so that we can contribute or we can see the contribution of the people, right? This style should not be used when, कब डेमोक्रेटिक लीडरशिप को यूज़ नहीं करना चाहिए? when the role are unclear or time is of the essence. मीन्स लीडरशिप
डेमोक्रेटिक वहाँ पे प्रॉब्लम कर देती है जहाँ पे टाइम कम होता है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन फेलियर्स होते हैं और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। नाउ थर्ड इज़ लेजिस्लेटिव और फ्री रेन लीडरशिप। ये क्या होता है बेटा? इट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। ये लीडरशिप क्या करती है? कंप्लीट फ्रीडम देती है सबऑर्डिनेट्स को। सच लीडर्स अवॉइड यूज़ ऑफ पावर। यहाँ पर पावर का कोई यूज़ नहीं होता है। दे आर जनरली डिपेंडेंट अपॉन देयर ओन ग्रुप टू इस्टेब्लिश देयर ओन गोल्स एंड वर्क आउट देयर ओन प्रॉब्लम। वो अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो उसमें वर्कआउट करते हैं। देयर इज़ नो सच एज लीडर इन दिस ग्रुप, राइट। ग्रुप मेंबर्स अपनी चॉइस और कॉम्पिटेंस के बेसिस पर ही अपने मेंबर्स का सिलेक्शन भी करते हैं, राइट। सो दिस इज़ योर लेजिस्लेटिव या रेने सिस्टम। इसमें क्या होता है? एग्जिस्टिंग लीडर जो है, ही वर्क एज अ कॉन्टैक्ट मैन विद आउटसाइडर्स टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। वो एक आउटसाइडर के साथ एक कॉन्टैक्ट मैन की तरह वर्क करता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को गैदर करता है और अपने वर्क को कंप्लीट करता है। सी बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर सेंटर्ड लीडरशिप, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। ए लीडर है, अब ए का कम्युनिकेशन देखिए कैसे करवा रहा है। दैट बी इज द पर्सन, बी इज एबल टू कम्युनिकेट विद सी, बी इज एबल टू कम्युनिकेट विद ई, बी इज एबल टू कम्युनिकेट विद डी एज वेल। Means everyone is able to communicate with each and every member. So this is your laissez-faire system, right? French word है laissez, इसका means होता है let और allow, faire means to do. जब हम allow करते हैं किसी को भी कोई work करने के लिए. So these are three methods of leadership: democratic and आपका autocratic and your laissez-faire system. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.